I have started the recording. Hey everybody, we are live and in stereo. I've started the recording and today we're going to do 5070/2 May June 23, and according to most of you guys it's one of the most difficult paper. I don't know why you guys think it's a difficult paper. Let's see what there is to it. The threshold for this paper was also quite low. It was around 52 out of 80, right? So let's see, there must be something in this paper that might taunt us or might haunt us, who knows. But since most of you have your mocks tomorrow, let's see what we can do. And this paper, I went over it a little. I went over it in a minute or two abhi jo recording se pehle, and I saw that in this paper almost 95% of your entire chemistry is being revised. So that's why it's a good paper to do before your mock exam. Say candidate name, my name is Suleiman Khan, and I'm gonna demolish this paper. Like the Britishers say, yes, this would be my famous dialogue. सर रिकॉर्डिंग के बाद इतने फ्रेश हो गए एकदम से, क्या करें यार, करना पड़ता है. अच्छा जी, without it's a 1 hour 45 minute paper and we'll try to tame this paper and slay this paper like we say in just a while. Chalo, let's start. It shouldn't take you more than 50 minutes to do this paper, but let's see. Okay. Choose from the following oxides to answer the question. It's one of the miscellaneous questions, right? You've given aluminum oxide. What do I know about aluminum oxide? I know that it's an amphoteric oxide. Amphoteric oxide means that it reacts with an acid as a base, and it acts as an acid when reacted with a base, and acts as a base when reacted with an acid, right? If you look at carbon monoxide is obviously a toxic gas. How is carbon monoxide formed? It's formed from the incomplete combustion of carbon containing fuels. And carbon monoxide will have no effect on the litmus paper because you realize that it's a neutral oxide. It's not an acidic oxide, it's a neutral oxide. And how do you get rid of carbon monoxide? You get rid of carbon monoxide with two reasons. Either you use lean burn engines जिसमें incomplete combustion ना हो, or what you do is you use a catalytic converter where the NOx and COX जो आपके पास carbon monoxide है, not the oxide of carbon as in carbon dioxide, ये नहीं होता. Carbon monoxide होता है और NOx होता है, which is nitrogen के oxides. They react together with the help of a catalyst, which is platinum or rhodium, to give you carbon dioxide and nitrogen, right? So this is what happens. This is how you could get rid of it. Or is aluminum oxide mein agar main dekhu, it has the aluminum 3+ ion, and you could also test for this ion by adding a few drops of sodium hydroxide. It's going to give you a white precipitate with a few drops of sodium hydroxide, and if you add excess sodium hydroxide, it'll be soluble. But with a few drops of aqueous ammonia, it'll give you a white precipitate again, but in excess aqueous ammonia, it's going to be insoluble, right? So ये कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए. Carbon dioxide is also one of those oxides of carbon, right? So जो carbon monoxide और carbon dioxide है, these are the oxides of carbon which are called as your COX, right? जैसे NOx, SOx, COX, done. तो ये जो आपके पास oxides of carbon है, carbon monoxide is removed through the help of a catalytic converter, whereas carbon dioxide, that's removed by planting more trees and using less carbon containing fuels and whatnot. ठीक है जी. तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है. और क्या क्या बात है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट विल टर्न द डैम्प ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड व्हाट नॉट, बहुत सी बातें, ठीक है. एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड? इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स, डन. कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम देखें, कैल्शियम ऑक्साइड को हमें पता है इट्स अ बेसिक ऑक्साइड. इट हेल्प्स इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जो कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड को हम आसमान से हटाते हैं. व्हाट डू वी डू? सल्फर डाइऑक्साइड is an acidic oxide. We react it with calcium oxide to get calcium sulfite, right? And this is how you could remove sulfur dioxide with the help of calcium oxide. So is calcium oxide used in catalytic converter? No, I never said. I said flue gas desulfurization. And it's also, how is it formed? One of the ways that you learned calcium oxide being formed is in the blast furnace. Calcium carbonate goes from calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide, right? And blast furnace में this calcium oxide, this reacts with silicon dioxide, which are basically sand particles, and it gives you calcium silicate, which is your slag. And this is basically calcium sulfite, which is used in plaster boards and whatnot, right? Acha,
H2O is in you. अच्छा, iron oxide. Iron oxide को देखें तो इसमें iron को देखें, Fe2O3 means that iron must have had a charge of 3 plus and O is 2 minus. That's why the formula is Fe2O3, right? And iron oxide is known as, in its pure state, in its ore state, ore state, it's called hematite. And you know, because you have the iron 3 plus ion, you could use it, you could think about the test for iron 3 plus ion, which is you add sodium hydroxide, it's going to give you a red brown precipitate, and that's going to be insoluble in excess as sodium hydroxide, and in aqueous ammonia it's going to give you a red brown precipitate, and in excess it's going to be insoluble again. Sir, how do we know which oxide is amphoteric or basic? You need to know it. Amphoteric दो ही तो हैं आपके कोर्स में, aluminum oxide and zinc oxide. Lead oxide used to be in your course, now it's no longer in your course. हाँ, अच्छा, H2O को अगर देखें, ये water है. और how do you test for water? How do you test for water? You either test it with anhydrous cobalt chloride or you test it with anhydrous copper sulfate, right? And you know, H2O is also a neutral oxide. Which three neutral oxides are a part of your course? It's H2O, it's N2O. N2O is laughing gas, and then it's carbon monoxide, right? These are the three neutral oxides. So it's a neutral oxide and whatnot. Na2O, it's again an ionic compound, but because of the sodium ion, I can quickly think and convert and link it with my tests, which is that it is going to give you a yellow flame color. I've taught you to see the compound as a whole. When we are doing miscellaneous questions, I've taught you to see the compound as a whole, and then also see them in their ionic state. Also see them, also split them into their ions and see whether a particular test applies to it or not. Sulfur dioxide, you know, it's an acidic oxide. It causes acid rain. Sulfur dioxide will react with oxygen to give you sulfur trioxide in contact process, remember. Or conditions जिसमें आपको पता है vanadium pentoxide is used at temperature of 450 degrees Celsius is used, and a pressure of around 2 atmospheres is used, right? Or how do you get rid of sulfur dioxide? How do you get rid of sulfur dioxide? Use low sulfur fuels, absolutely. या flue gas desulfurization करे, in which you use calcium oxide, you react it with sulfur dioxide to give you your calcium sulfide. ठीक है जी. Sir, what are COX and NOx again? देखो, there is SOx, NOx and COX. ये मैंने environmental chemistry में पढ़ा है. SOx, NOx or COX. And you know that these are the oxides of sulfur, oxides of nitrogen, oxides of carbon, right? तो कार्बन की जो दो oxides हैं, इसमें carbon dioxide और carbon monoxide है. Carbon monoxide is removed through catalytic converter, but carbon dioxide is not removed through catalytic converter. In fact, it is formed when carbon monoxide is removed. लेकिन carbon dioxide can be removed by planting more trees and whatnot. खत्म. अच्छा, आ जाओ. Silicon dioxide को अगर हम देखें, silicon dioxide or silicon 4 oxide is a giant covalent structure. You could also call it a giant covalent lattice. It's a macromolecule as well. Giant covalent इसको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि it's one of the 3 giant covalent structures that you've studied, right? It has strong covalent bonds, due to which it has high melting point, high boiling point. It's very strong and whatnot. ठीक है? Diamond, graphite and silicon dioxide are the 3 giant covalent structures. ठीक है साले? हाँ, अच्छा. Each oxide may be used once, more than once, or not at all. Which oxide is a solid made during the thermal decomposition of limestone in blast furnace? Limestone is calcium carbonate. So what is made during the thermal decomposition of the solid which is made during the thermal decomposition? One, you get calcium oxide and you get carbon dioxide. Now you'd realize that calcium oxide is also given and carbon dioxide is also given. Is it given? Is it carbon dioxide given? No. Okay, carbon dioxide is not given. But what if carbon dioxide was also given to you? Then okay, it's given. Carbon dioxide is also here, and you also have calcium oxide right here. So what if now you have to select between the two? He's saying it's a solid, it's not a gas. If it said it's a gas made during the decomposition of limestone, which is calcium carbonate, then you'd go for carbon dioxide. But now it's a solid, and you know calcium oxide is a solid, carbon dioxide is a gas. So I'm going to say, hey, it's calcium oxide. Oops. That's calcium oxide. Reacts with both alkalis and acid. That's an amphoteric oxide. That's aluminum oxide, Al2O3. We already discussed it. Has a giant covalent structure. That's silicon dioxide, silicon 4 oxide, silicon dioxide, SiO2. Has an ion with the oxidation number of +2. याद रखिए,
the oxidation number is the same as the charge on the ion. तो इनमें देखिए कौन सी के ऊपर 2+, किस आयन के ऊपर 2+ का चार्ज होगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा. अगर आप इन सब को देखें तो एल्यूमिनियम हैज़ a 3+ charge, it has an oxidation state of +2. You are absolutely wrong. Iron does not have a charge of 2+, it has a charge of 3+ right here. Fe2O3 iron, इसको reverse working करें तो iron has a charge of 3+, not 2+. It's saying tell me which has a charge of 2+. And if you look at this, if you look at all your options, you'd realize oxygen is -2. If you look at all, sodium is +1. But if you look at all your options, you'd realize that out of all these options, calcium oxide is the one which has the oxidation state, has the ion which has the oxidation state of +2. Why? Because calcium oxide, if you write the formula down, you'd realize that calcium has a 2+ ion, O is 2-. That's why the formula is CaO. How do you know calcium is 2+ ion? Because it is in group 2. Group 2 elements, they are going to lose 2 electrons to become stable, to have a stable electronic configuration. Cancel kuncel kuch nahi hota प्रार्थना. You just realize that for 1 2+, there is 1 2-. कोई cancel kuncel नहीं है, ये वैसे रट्टे वाली बात होती है, cancel हो जाता है. Calcium oxide, right? So because it's in group 2, it has a 2+ ion. That's why you'd realize that it has the oxidation number of +2. So which one is this? This is calcium. Oh, but sir, you've written calcium oxide at the top and right here as well. Can we write it twice? Yes, he's saying each oxide may be used once, more than once, or not at all. Turns white anhydrous copper sulfate blue. You have anhydrous copper sulfate. It reacts with 5 H2O molecules, and the forward is exo and the backward is endo, and you'd realize that this copper sulfate is going to bond with these 5 water molecules, which you call water of crystallization. So which particular oxide was the one which turned anhydrous copper sulfate, which is white, into hydrated salt of copper sulfate, which is blue? Which oxide was it? It was the H2O. It was pani. Is made during the fermentation of glucose to make ethanol. Fermentation of glucose, you have glucose and what do? You add yeast to it. You provide it with a temperature of around 25 to 35 degrees Celsius. And what do? It's in the absence of O2. And what happens is you get 2 moles of ethanol, which is CnH2n plus 1 OH. Plus you get carbon dioxide ke 2 moles. Now, which of these is made? Which of these oxides are made? Obviously, ethanol is not an oxide. So even if ethanol was given to me, wo keh rahe, which of these is made during the fermentation of aqueous glucose? So you'd realize that's carbon dioxide because you're given data about oxides. There's no ethanol right here. So which oxide is it? It's your beautiful carbon dioxide. Khatam, आगे बढ़ूं. आसान था. इसमें क्या था? पता नहीं. Can you explain D again? I got disconnected. D में क्या है? It is an ion with the oxidation number +2. तो एक कौन सा आयन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा? उस आयन के ऊपर 2+ का चार्ज होगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा ना. The charge on the ion is the oxidation number. So the charge must have been 2+ for the oxidation number to be +2. And you realize that calcium has a charge of 2+. F दोबारा explain कर दें. इसमें दोबारा क्या है? When you do fermentation of glucose, what do you get? You get carbon dioxide. That's why I wrote carbon dioxide. It's made during the fermentation. Carbon dioxide is made. मतलब क्या कहूँ इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ? फर्मेंटेशन से समझा दूँ इधर. वो मैंने बहुत दफ़ा समझा भी दी. बल्कि look at this. ग्लूकोज है, यीस्ट डाला, ये डाला, फर्मेंटेशन भी सारा रिवाइज करा दिया. हाँ, आगे बढ़ें. State 2 group 1 includes the elements of lithium, potassium, sodium. State 2 physical properties of lithium. Lithium is in group 1, right? What are the physical properties of group 1 elements? What are the figures? They are soft, sir. Bilkul. No. Malik. No, they don't have a high melting point. They're an exception. Group 1 metals usually have a low melting point. They have low densities. That's why they float on water. They're good thermal conductor कह सकते हैं. They're shiny कह सकते हैं. Malleable कह सकते हैं. Ductile कह सकते हैं. Saying they have variable densities, that's you could say that, but that's not just group 1. ये तो हर जगह variable density होगी. Shiny है बिल्कुल, colorless नहीं भाई, colorless नहीं. तो कह दें soft है, जो आसान है soft कह दें ना, soft है ये. That's why they can be cut with knives, right? Soft कह दूंगा और मैं कह दूंगा sir it has low density.
You know these two things, right? It also has a low melting point. Group 1 का low melting point होता है, although it has a metallic lattice, लेकिन they have a low melting point because their metallic lattice is metallic bonding is a little weak, right? और भी बातें कर सकते थे आप, कह सकते थे सर डक्टाइल है, आप कह सकते थे 50,000 बातें कह सकते थे, आप कह सकते थे सर ग्रुप 1 मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिख सकते थे, आप कह सकते थे सर मैलिएबल है, आप कह सकते थे सर दे आर गुड थर्मल कंडक्टर्स, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज दे आर मेटल्स दे विल हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज मेटल्स की उनकी सारी इनकी भी होगी सर, गुड थर्मल कंडक्टर्स, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड व्हाट नॉट, राइट? बहुत इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इतने सारों में भी अगर आप कुछ मिस कर दें तो अफसोस की बात है. Soronus sonorus, not a part of your course. Highly reactive, no, that's not a physical property. Highly reactive is a chemical property. Reactivity means, sir, don't they have high MP? No, Rania, किसने कहा है? They have a low melting point. Group 1 का low melting point है. Shiny कह सकते हैं बिल्कुल. Sir, that I heard that all metals and non-metals form ionic compound. हरम दफा करें इसको. Oh my bad, didn't read the question. अच्छा, आगे बढ़ें. Potassium reacts with cold water. The ionic equation is shown. State in terms of electrons why potassium is a reducing agent. Terms of electrons, मुझे बताएं in terms of electrons why potassium is a reducing agent. What is a reducing agent? A reducing agent is a substance which oxidizes itself to reduce other. तो potassium देखें, it went from the oxidation state of 0 to the oxidation state of +1. तो खुद oxidize हो गया. It went from 0 to +1. There is an increase in oxidation state, which means it has been oxidized itself. लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये मनहूस लूज करते हैं, the electrons don't vanish in thin air. Remember, electrons don't vanish in thin air. ये इलेक्ट्रॉन किधर गया? सर इस पोटेशियम ने ये इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आयंस को दिया जो पानी में मौजूद होते हैं, और इन हाइड्रोजन आयंस को इसने रिड्यूस करके हाइड्रोजन बना दिया था. सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू सी, potassium has lost the electrons, and because it has lost the electrons and has oxidized itself, where did the electrons go? The electrons were then gained by these hydrogen ions in water, and they became H2 gas. So that's how it's acting as a reducing agent, because it's losing electrons, right? So potassium is losing electrons. और फर्दर आप इसमें चूंकि स्टेट लिखा है तो मैं इसमें ज्यादा बातें नहीं लिखूंगा, और कह सकते हैं एंड रिड्यूसेस H2O, तो लिख सकते हैं एंड रिड्यूसेस H2O. हाँ, अच्छा, स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2. H2 has the oxidation number of 0. Why? Because it's in its pure elemental state, so that's 0. It's not combined with any other element. आगे बढ़े. Describe what is observed during the reactions. There are so many observations and I've taught all of them in environmental chemistry. याद है आपको मैंने सोडियम की वो डायग्राम भी सारा दिखाया था. तो you could say, there are so many observations. When potassium is reacting with water, you could see that potassium floats on water. You could see effervescence because of hydrogen gas forming. You could see that this solid is going into the aqueous solution, so the solid becomes smaller and smaller. You could see so many things. It's not about short answer or long answer, it's about pinpoint correct answer. ठीक है जी? So you could see effervescence, you could see a colorless solution forms because it's not a transition metal ion which is forming. Absolutely, Abiha is also right. What a beautiful observation, yaar. Ayan, Abiha, zabardast. They're both saying lilac flame can also be observed. Absolutely, you guys are right. Why? Because hydrogen is being produced and hydrogen is highly flammable. So because this is a very, this is an exothermic reaction, होगा क्या कि हाइड्रोजन बनेगा और आपके पास एकदम से एक लाइलैक फ्लेम भी ऑब्जर्व होगी. यू कैन ऑल्सो से दैट पोटेशियम मेल्ट्स. बिल्कुल, पोटेशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जैसे ये रिएक्शन करता है इट मेल्ट्स. सो देयर आर सो मेनी ऑब्जर्वेशंस. मैं 2-3 लिख लेता हूं. मैं कहूंगा सर एक तो है कि ये देखिए ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले गैस मुझे नजर आया तो आई वुड से दैट आई ऑब्जर्व एफर्वेसेंस. क्यों? बिकॉज गैस इज बीइंग फॉर्म ना. ये नहीं लिखना कि बिकॉज गैस इज बीइंग फॉर्म, बस जो आपको नजर आ रहा है. क्या क्या नजर आ रहा है सर? एफर्वेसेंस, SENCE, एफर्वेसेंस इज ऑब्जर्व्ड. जनाब वाला इज ऑब्जर्व्ड. You could say that potassium floats on water. You could also say that a lilac flame is seen. You could also say potassium melts. You could also say the solid becomes smaller and smaller. Solid becomes smaller and smaller, and what not. And smaller. Adam.
सर अगर एफरवेसेंस की स्पेलिंग गलत होगी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एफरवेसेंस वसीनी, मैंने तो बिल्कुल गलती की। एफरवेसेंस की क्या स्पेलिंग है? VESC। ओहो, एफर बताएं, स्पेलिंग बताएं। एफरवेसेंस, बबलिंग लिख लें यार, फिजिंग लिख लेता हूँ, बबलिंग लिख लेता हूँ, बबलिंग। एफरवेसेंस इज़ अ बेटर वर्ड, स्पेलिंग सीख लें यार, मुझे नहीं आती। SEENCE, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आगे बढ़ें। अ सैम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज टेस्टेड यूजिंग अ फ्लेम टेस्ट। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड फ्लेम टेस्ट आर यूज्ड फॉर द पॉजिटिव आयन। सो सोडियम आयन इज द पॉजिटिव आयन दैट इज प्रेजेंट सर। सो व्हाट इज द कलर विद सोडियम आयन फॉर द फ्लेम टेस्ट? इट्स अ येलो फ्लेम विच इज ऑब्जर्व्ड। स्टेट द फ्लेम सीन, इट्स अ येलो फ्लेम। आगे बढ़ें। Zinc chloride is a soluble salt. This question is about preparation. It's an other soluble salt. Obviously, it must have been prepared through the excess method. You know, आपने zinc oxide को इधर देखें, he's reacting zinc oxide, तो जाहिर सी बात है ये excess में होगा और acid limiting में होगा. Why? To make sure that all the acid is used up, ताकि ये पूरा का पूरा acid is used up, so it is easier to remove, you know, this solid left behind from the aqueous solution through the process of filtration. ठीक है जी? अच्छा जी, सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। सर कैन यू स्क्रॉल अप 1 सेकेंड? श्योर, हियर स्क्रॉल अप। हाँ जाऊँ जी? करूँ शावर शावर, जल्दी जल्दी जल्दी। कैल्शियम इज द रेड फ्लेम, इट्स ऑरेंज रेड, कैल्शियम 2+ आयन। सही। अच्छा, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन. A sample of 3.50 grams of zinc oxide is added to 50 centimeter cube of 1.2 mole per decimeter cube of hydrochloric acid. Show that zinc oxide is in excess. अच्छा, इतना फजूल आसान सवाल है, to be very honest. Sir, does spelling matter in organic chemistry? It does. Sir, वैसे could you please tell metals में, sir can you please share the paper after? Sure. अब देखें, यू आर गिवन अ डेटा ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड यू आर ऑल्सो गिवन डेटा फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? सो व्हाट द एग्जामिनर इज डूइंग और व्हाट अ स्टूडेंट इज डूइंग इज ही इज यूजिंग जिंक, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड, एंड ही इज ऑल्सो यूजिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दैट्स सो स्टूपिड, राइट? बिकॉज ही नीड्स टू सी कि यार इन दोनों का इक्वल, मतलब तकरीबन इनका इक्वल एज इन नंबर में इक्वल नहीं, इन दोनों के प्रोपोर्शंस इक्वल होने चाहिए, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कंपेयर जिंक ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट्स अ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट क्वेश्चन. हाउ डू आई नो? सर आपको दोनों रिएक्टेंट्स का डेटा दिया हुआ हो, तो अगर मैं कहूं कि यार दोनों रिएक्टेंट्स का डेटा है, जिंक क्लोराइड का अगर मैं मास कैलकुलेट करना चाहूं कि व्हाट इज द मास ऑफ जिंक क्लोराइड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन, सो यूड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू फाइंड आउट कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दोनों में से, एंड विद द हेल्प ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट यू विल हैव टू फाइंड द मास ऑफ जिंक क्लोराइड, राइट? नाउ हाउ डू यू फिगर आउट व्हिच ऑफ दीज इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? आई हैव ऑलरेडी डन दीज ऑल ऑफ मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चंस इन माय क्लास, ये हमने क्लास में भी किया, लेकिन हाउ डू यू डू इट? सर फिलहाल मैं अब इतनी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा. सिंपल सा दो स्टेप्स का गेम है. दो स्टेप्स क्या है? दोनों जो डेटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट बोथ डेटा इनटू मोल्स टू फिगर आउट कि यार इन द लेबोरेटरी कितने मोल्स दोनों के मौजूद हैं. तो दोनों के डेटा को, पहला स्टेप लिमिटिंग एंड एक्सेस का होता है कि सबसे पहले दोनों जो डेटा है उन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करें. मैं इसके पीछे लॉजिक्स अब नहीं पढ़ा सकता, वो मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री की 2-3 घंटे की क्लासेस है, ठीक है? तो चलें दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करें. सबसे पहले सर यू हैव मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करें. हाउ डू गो फ्रॉम मास टू मोल्स? सर मास इक्वल्स मोल टाइम्स मोलर मास. मास कितना है? 3.5. मोल जिंक ऑक्साइड के निकालने. मोलर मास ऑफ जिंक ऑक्साइड Zn इज 64 है कि 65 है सर, और ऑक्सीजन इज 16. सो मोल्स, इफ आई वांट टू फाइंड मोल्स, 3.5 इधर मल्टीप्लाई और लेफ्ट पे डिवाइड हो जाएगा ना, या डिवाइड बाय 81 ऑन बोथ हैंड साइड्स. तो डिवाइड बाय 81. व्हाट आर द मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड दैट आई एम गेटिंग? व्हाट आर द मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड दैट आई एम गेटिंग? हाँ जी, 0.0432. आई होप इट्स करेक्ट गाइज. ये आप लोग करें, मैं तो सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ. कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप लोगों के हाथ में. अच्छा, मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूर गिवन द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड यूर गिवन द कॉन्सेंट्रेशन. हाउ डू यू गो फ्रॉम वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन इनटू मोल्स? N इज इक्वल टू CV. मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितना है सर? 1.2, एंड वॉल्यूम कितना है? इट्स 50 cm3. बट यू रियलाइज ये डेसीमीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, राइट? तो मैं इधर डायरेक्ट कर देता हूँ. 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 10⁻³ का मतलब ये डिवाइड बाय 1000 क्या आ रहा है? 0.06. थैंक यू. सो दिस इज 0.06 मोल्स ऑफ HCl. अब देखें आपके पास लेबोरेटरी में क्या मौजूद है.
in the laboratory you have these many moles of HCl and you have these many moles of zinc oxide. Now what I have to do is, second step is always to use the equation to figure out कि यार zinc oxide या HCl के लिए कितने moles चाहिए थे. So you need to compare the two. You need to compare zinc oxide with hydrochloric acid, and you need to see, hey, 1 mole of zinc oxide reacts with 2 moles of hydrochloric acid. 1 mole of zinc oxide reacts with 2 moles of hydrochloric acid. What if, now I can use either or, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इस्तेमाल करें. एक को हम अननोन करेंगे और एक को हम इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So let's suppose I'm using 0.06 moles of HCl, right? So I'm going to say, hey, 1 mole of zinc oxide reacts with 2 moles of hydrochloric acid. So 0.06 moles of HCl के लिए कितना zinc oxide required है? N cross multiply, what do you get? What do you get? What do you get? How many moles are required? Sir, 0.03 moles of zinc oxide are required for 0.06 moles of HCl. अब मुझे आप एक बात बताएं. These many moles of zinc oxide were required to completely react with these many moles of HCl से. These many moles were required to completely react with these. लेकिन available कितने हैं? Available तो मैंने पहले से calculate किए. Sir, required कितने moles थे? Required moles of zinc oxide to completely react with 0.06 moles of HCl. Sir, that is 0.03 moles. I've calculated this. But how many are present? What is the amount present? Sir, the amount which is present in the laboratory, this stupid man has taken more. He has 0.0432 which is present. तो सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है? कितना एक्सेस है? By how much is zinc oxide in excess? Zinc oxide is in excess by, देखिए रिक्वायर्ड कितने थे? रिक्वायर्ड 0.03 मोल्स थे और अवेलेबल कितने? 0.0432. तो कितने से एक्सेस में? 0.0132. इतने ग्राम से जिंक ऑक्साइड एक्सेस में. क्या ये फालतू वाला काम ज़रूरत था? नहीं. आप लोगों का आंसर इधर ख़त्म हो जाना था. दिस इज द मोस्ट यूड गो टू. तो याद रखिएगा, लिमिटिंग एंड एक्सेस का अगर ऐसे सवाल है ना कि शो दैट फलाना इज इन एक्सेस, शो दैट टिमकाना इज इन एक्सेस, बड़ा सिंपल तरीका है. मैं सिर्फ फिलहाल तरीका सिखा रहा हूँ. लॉजिक्स मैंने अपने लाइव क्लासेस में पढ़ाए. तरीका सुन लें. तरीका क्या है? दोनों जो डेटा गिवन है ना, इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करें. दिस इज व्हाट इज प्रेजेंट विद यू. अब इन दोनों को कंपेयर करें और किसी को भी एक को अननोन कर लें, राइट? तो अगर मैंने कहा अच्छा इतना मेरे पास अवेलेबल है HCl, इसके लिए थ्योरेटिकली कितना चाहिए था? 0.03, लेकिन अवेलेबल इतना है. चाहिए इतना था, अवेलेबल इतना है. तो यू वुड फिगर आउट विच वन इज इन एक्सेस एंड विच वन इज लिमिटेड. सर मक्खन सवाल, मजा आ गया. ऑसम. State why is it important to use excess zinc oxide? Well, you dumb person, if you don't use excess zinc oxide and you use excess hydrochloric acid, what's going to happen is, if let's suppose hydrochloric acid was in excess, so you'd get zinc chloride, ये zinc chloride aqueous बना, और you'd also have hydrochloric acid aqueous. तो इन दोनों को अब मैं कैसे सेपरेट करूंगा? The reason why zinc oxide is in excess is for all the HCl to be used up, and therefore you could easily separate this zinc oxide solid from zinc chloride aqueous by simply filtrating it. Sir, my chemistry mock went great, all thanks to you. Thanks, Umayma. I appreciate it. अच्छा, तो अब होगा क्या सर? Why is it important? So that all the acid is used up. ना, you dumb person. So that all the acid is used up. Done. अच्छा, एक बंदा ना एक बंदा प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन में ना मार्किंग स्कीम भी साथ खोलें कि कोई हमसे वैल्यू वगैरह गलत हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अच्छा, सजेस्ट हाउ दी एक्सेस जिंक ऑक्साइड. इसका मतलब नहीं है कि आप पूरे सॉल्विंग के दौरान मार्किंग स्कीम को देखते रहें, नहीं, थोड़ा एंड में जब सवाल हो जाए तो एक नज़र देख लीजिएगा. सजेस्ट हाउ दी एक्सेस जिंक ऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन. हाउ इज इट रिमूव्ड? हाउ डू यू रिमूव द एक्सेस जिंक ऑक्साइड? सर, यू रिमूव इट थ्रू द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. इट्स अ सॉलिड ना, ये एक सॉलिड है, तो ये एक्सेस में रह गया. और जिंक क्लोराइड जो है which has been formed, that's in its aqueous state. So how do you remove a solid from an aqueous solution? You filter it out, right? So that's basically your beautiful filtration. Filter it out लिख लिए, filtration लिख लिए की बात है. Barium sulfate is an insoluble salt. How do you prepare an insoluble salt? So you have the barium 2+ ion and the sulfate 2- ion. How do you prepare this insoluble salt? You need 2 soluble salts. Identify 2 soluble salts. You know that all nitrates are soluble, so I take barium nitrate, and you could take any soluble salt with the sulfate. Any soluble salt with the sulfate. कोई भी ले सकते हैं. Sir, you know that all sulfates are soluble except for LMS and Castrobar.
LMS एंड कैस्ट्रोबार. LMS कैस्ट्रोबार क्या है? लेड मर्करी सिल्वर, लेड मर्करी सिल्वर, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम. इनके अलावा आप कोई भी सल्फेट ले लें, सोडियम सल्फेट ले लें, पोटेशियम सल्फेट ले लें, आप जो है जनाबे वाला अमोनियम सल्फेट ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें, बिल्कुल ले लें. सो नेम टू aqueous solutions that would react together to give you barium sulfate precipitate. I take barium nitrate and I'd also, अच्छा name कह रहे हैं, name, don't write the formula, name it, please name it. So name it barium nitrate and I take sodium sulfate. खत्म. Sulfuric acid is not a salt. अच्छा, sodium nitrate is a soluble salt. Sodium nitrate is a soluble salt, and you know it's a soluble salt of group 1. How do you prepare a soluble salt of group 1? Sir, we prepare it through the help of titration, right? What do you do? What do you do in titration? Sir, sodium ion and nitrate ion, we need an acid and an alkali, right? So sodium ion के साथ हम hydroxide ion लगाते हैं, so we take this alkali, और nitrate ion के साथ obviously we attach the hydrogen ion. So you need an alkali, or you need the base, which is sodium hydroxide, and the acid that you would need is HNO3, and you're going to titrate these two together, right? HNO3 is nitric acid. Name the acid and the alkali. You said the acid is, name it. The acid is nitric acid, and the alkali is sodium hydroxide. Name the experimental technique used to make neutral aqueous sodium nitrate. What is the experimental technique called? What's this experimental technique called which we perform जो nitric acid और इसको हम करते हैं सर? This experimental technique is called titration. किसी ने एक सवाल बहुत मज़े का पूछा है, अयान ने पूछा है, सर वाई टाइट्रेशन व्हेन इट्स अ सॉल्युबल सॉल्ट. अयान, ये वाई के जवाब सारे मैंने लाइव क्लासेस में दिए हैं. आपने तो मेरी लाइव क्लासेस ली हैं, जाके लेक्चर नंबर 7 या 6 खोल लें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, आपको सारे वाइस के जवाब मिल जाएंगे. सर इज़ नोइंग कैस्ट्रोबार नेसेसरी? यस इट्स नेसेसरी. सर अब आ रहा है, कल टॉप करूँगी. राइट नाउ, ऑसम. आगे बढ़ें सर. द क्वेश्चन, अच्छा ये 2 घंटे का पेपर है तो मैं थोड़ा तेज़ पेस के साथ इसलिए जा रहा हूँ कि इसको ख़त्म करें जल्दी हैं, तो यू ऑल नीड टू कीप अप विद माई पेस. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंड्स दैट कंटेन फॉस्फोरस. द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फाइड आयन कैन बी रिटन एज P3 minus, right? This 15 represents the number of protons. 15 protons हैं. Sir, 3 minus means it has 3 more electrons than protons. 3 ज़्यादा electrons हैं than protons. Then P's. 3 more E's than P's. So how many E's are there? There are 18 E's. And how do you calculate the number of neutrons? Sir, 31 minus 15. बड़े को छोटे से माइनस करें. What do we get? 16. अच्छा, ये क्यों 31 minus 15 करते हैं? चलो ये बता देता हूँ. 31 is the mass number. Mass number क्या होता है? It's the total number of protons plus neutrons. Or you could say it's the nucleon number, right? Mass number, nucleon number एक ही बात है. So mass number कितने हैं? 31. Proton number क्या है? 15. Neutron मुझे नहीं पता, n. And now 15 is being added here. Subtract 15 on both sides. या 15 को left पे shift कर दे तो 31 minus 15. इसीलिए हम बड़े को छोटे से माइनस करते हैं. करें आगे जाएं. So what do you have? You have the number of electrons are 18, the number of neutrons are 16, and the number of protons are 15. State why the formula of phosphide ion is P3 minus rather than P2 minus. Oh, you dumb person, phosphorus is in group 5, so it needs 3 electrons to become stable. So obviously it's going to be P3 minus, right? It's going to be P3 minus because P3 minus would mean that it now has a complete outermost shell, or it now has a complete octet, right? P2 minus के साथ तो complete octet नहीं होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी चाहिए होगा. P4 minus तो possible ही नहीं है, उसमें 8 की जगह 9 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते. So it's P3 minus because P3 minus is the only form जिसमें आपके पास full outermost electron shell आ जाते हैं. ठीक है जी. तो why is the formula P3 minus? Because phosphorus या P3 minus लिख लेते हैं, because P3 minus has a full outermost electron shell. खत्म. कैस्ट्रोबार क्या है? कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम. द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम आयन इज 2+. ठीक है, फॉर्मूला 2+. डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फाइड. कैल्शियम आयन इज 2+. फॉस्फाइड आयन इज द P3 माइनस आयन. ऊपर भी बता भी दे. क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू गेट? Ca2P3. दैट्स द फॉर्मूला.
Ca3P2 उल्टा लिख लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई Ca3P2 आगे बढ़े। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट इज एन आयनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम फॉस्फेट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, और हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दोनों की बेस पे बात करते हैं। मैंने हमेशा से बताया यू नीड टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। 2 मार्क का सवाल है, एक बॉन्डिंग का है और एक स्ट्रक्चर का है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इट्स अ जायंट आयोनिक लैटिस, जायंट आयोनिक लैटिस कह दे या स्ट्रक्चर कह दे विथ स्ट्रॉन्ग, एक मार्क इसका मिलता है और दूसरा मार्क मिलता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की, विथ स्ट्रॉन्ग electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. Ionic bonding की definition मांगी थी बस, charged ions। आगे बढ़े, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी दिया था तो यू कुड हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला बाय सेइंग ये कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, फॉस्फेट इज 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 2 मल्टीप्लाइज विद द एंटायर PO4, राइट। तो ये 2 पूरे PO4 के साथ है और ये 3 कैल्शियम के साथ मल्टीप्लाई है। सर वोंट वी राइट P3 माइनस इज इन ग्रुप 5 सो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा तो फिर तो आप ये भी कह सकते थे कि P3 कह सकते हो, बट यू कुड ऑल्सो सेट सर इट्स इन ग्रुप 5 तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्यों नहीं कहा कि इट्स इन ग्रुप 5 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो गेन करेगा, क्यों नहीं कहा? ये क्यों बताए ना, ये क्यों ये पूछ रहा है कि ये यहीं हाँ, ये क्यों ये पूछ रहा है, क्यों? हाँ बिकॉज 2 से तो ये 2 भी तो गेन कर रहा है, 4 भी तो कह रहे हैं। हाँ 2 और 4 से तो गलत है ना, फुल तो वो 3 से होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका 3 माइनस इसलिए है क्योंकि पूरा शेल जो कंप्लीट होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, तो इसीलिए 3 माइनस है। बिल्कुल सही है। अच्छा फॉस्फेट का, अच्छा परसेंटेज बाय मास, मास निकालो भाई, किस चीज़ का निकालना है, और फॉस्फोरस का मास ढूंढना है। तो परसेंटेज मैथ्स में आपने सीखा है कैसे निकालते हैं, पार्ट बाय होल इनटू 100, राइट। तो पार्ट कितना है, फॉस्फोरस फाइंड करना है, 2 टाइम्स P, दैट्स माय फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का AR बताएं क्या है, 31 है, 31 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 31 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट्स द मास ऑफ फॉस्फोरस, दैट्स माय पार्ट। और डिवाइड बाय होल, इस पूरे कंपाउंड का मास क्या है सर, कैल्शियम कितना है 40, यू हैव 3 कैल्शियम्स, टाइम्स इट बाय 3। फॉस्फोरस कितना है 31, यू टाइम्स इट बाय 2 बिकॉज यू हैव 2 फॉस्फोरस। और ऑक्सीजन कितना है 16, यू टाइम्स इट बाय 2 टाइम्स 4 दैट्स 8, सो यू टाइम्स इट बाय 8। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस, 31 टाइम्स 2 दैट्स 62, और इसको प्लीज करें क्या आ रहा है 310, 62 डिवाइड बाय 310 इनटू 100%, ऐसे ही है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। सर व्हाट डू वी गेट, कितना परसेंटेज आ रहा है, 20%। हाँ जी 20% आ रहा है। सर आपको डायरेक्ट कैसे पता लगा 20% है, किडो 0 0 कट गया, 1 ज़र 2 ज़र और 2 इंटू 10 20, मैंने ऐसे किया, इसलिए मैंने डायरेक्ट कह दिया 20 आ रहा है। सारा दिन यही करते हैं। आगे बढ़े। हाय मेरे ख्याल से ये सवाल था जिसने पूरे थ्रेशोल्ड को गिरा दिया था, क्योंकि टीचर्स ने रट्टे बच्चों को लगवाए थे ना, और अब देखते हैं फ़र्क, अब फ़र्क देखते हैं। Ammonium chloride decomposes when heated to make hydrogen chloride and ammonia. This reaction is reversible. The forward reaction absorbs thermal energy. What does this mean? Thermal energy किस reaction में absorb होती है? एक है thermal energy is given out, एक है absorbed. Given out, taken in. Released, absorbed. Absorbed exo में किधर होता है यार क्या कर रहा है? एंडो थर्मल तो फॉरवर्ड इज एंडो, बैकवर्ड इज ऑब्वियसली देन गना बी एक्सो। बस ये गलती अगर जिसने की उसका पूरे 10 मार्क गए, 10 है कि 15 मार्क, 10-15 मार्क गए, 10 मार्क आपके गए अगर आपने ये गलती की है। खैर 10 मार्क तो नहीं, 2 मार्क्स। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन हैपेंस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। हमें पता है इक्विलिब्रियम बनता ही क्लोज सिस्टम में। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है कि इन अ क्लोज सिस्टम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर चेंजिंग, दे आर कॉन्स्टेंट। दैट डजंट मीन दे आर इक्वल नहीं, दे आर नो लॉन्गर चेंजिंग। अगर 2 इधर बन रहे हैं अब तो 2 वापस डिकम्पोज हो रहे हैं, 2 बन रहे हैं फिर
डिकम्पोज बन रहे हैं, डिकम्पोज बन रहे हैं, तो इक्वल नहीं है सर, इक्वल नहीं है. द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और यू कुड से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नो लॉन्गर चेंजेस. इक्वल नहीं होते, ज़रूरी नहीं है. अच्छा, इंक्लूड आइडियाज अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है सर? इन अ क्लोज सिस्टम, वो उसने पहले से क्लोज सिस्टम कह दिया, तो मैं क्या कहूँगा, मैं सिर्फ फिर रेट की बात कर देता हूँ. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward या reverse reaction, and the concentration of reactants and products are constant, are not equal, are constant. और या कह दें are no longer changing, कह दें तो बेहतर है. are no longer changing. constant का मतलब है they are no longer changing. सर क्लोज सिस्टम ज़रूरी है? हाँ, अगर क्लोज सिस्टम नहीं हो तो वो ऊपर उसने लिखा है ना, इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा. नीचे मैंने 2 पॉइंट्स लिख लिए, 2 मार्क्स आ गए. अगर 3 मार्क का सवाल होता फिर मैं क्लोज सिस्टम भी लिखता, लेकिन वो फिर ऊपर आपको ना देता. क्लोज सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर क्लोज सिस्टम नहीं होता तो आपके पता है देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच कैन मैनिपुलेट द इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कभी कॉन्सेंट्रेशन, कभी रिएक्टेंट्स जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे. सर व्हाई डिड यू स्क्रीम आर नॉट इक्वल? बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, दे आर कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट ये अगर मैं कहूँ आपके पास 40 ये हैं और 60 ये हैं और अब इक्विलिब्रियम बन गया, इसका मतलब है कि अगर ये फॉर एग्जांपल 2 ये बना रहे तो ये उसी स्पीड से 2 ये वापस बनाएगा. तो इसका मतलब है दे आर कांस्टेंट. दैट डजंट मीन दैट 40 इज इक्वल टू 60. ठीक है जी, तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें. प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज? इट फेवर्स दी एक्सप्लेनेशन मैं इधर लिख लेता हूँ. इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक, विच इज, पूरी बात लिखनी है, विच इज द फॉरवर्ड रिएक्शन और द रिवर्स रिएक्शन? विच इज द फॉरवर्ड रिएक्शन. Therefore the position of the equilibrium moves where? To the right, obviously, right? So equilibrium position moves to the right or shifts to the right. एक ही बात है, move लिखे shift लिखे एक ही बात है. आगे predict what happens to the position of equilibrium when pressure is increased. Increase in pressure, explanation मैं पहले लिख देता हूँ. Increase in pressure favors fewer moles of gas, fewer gaseous moles लिख लें या moles of gas, which is पूरी बात which are on which hand side? Which are on the left hand side or right hand side? देख लीजिएगा सर, right hand side पे you have 1 mole 2 mole. In the right hand side you have 2 moles of gas. On the left hand side this is a solid, you have 0 moles of gas. On the left there are no moles of gas. So sir favors fewer moles of gas which are on the left hand side, and therefore the position of the equilibrium shifts to the left. आगे प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ. इधर बच्चे मार खा गए थे, मर मुर गए थे पेपर से आके खुशी ओ माय गॉड ये वो. सर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखे, फॉरवर्ड रिएक्शन लिखे, आसमान रिएक्शन लिखे, जमीन रिएक्शन लिखे. रिमेंबर रेट डिपेंड्स ऑन द कोलिजन्स. It depends on the frequency of collisions. It has nothing to do with backward reaction or forward reaction. It has nothing to do with equilibrium. It has nothing to do with equilibrium. याद रखिएगा, रेट की बात आ गई, बैकवर्ड लिखा है, फॉरवर्ड लिखा है, इसको काट दे अपने लिए. ये एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था. एग्जामिनर ने आपको ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा था. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सर और टू एपिसोड एक ही बात है, शामीन एक ही बात है. प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट किस पे डिपेंडेंट है? बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा. अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे you'd realize that this means that there is an increase in kinetic energy, particles move faster, there will be more frequent collisions, and particles would also have more energy. More percentage of particles would have energy equal to or greater than the EA. तो rate of forward भी बढ़ेगा, backward भी बढ़ेगा. ये backward forward सिर्फ confusion के लिए दिया था कि बच्चे इसको equilibrium के साथ correlate करके अपना आंसर वाड़ दें. हैं प्रोग्राम बढ़ गया. तो what is the explanation? Sir, increase in temperature means that there's going to be an increase in kinetic energy of particles. Particles move faster.
अब देखिए 2 मार्क का सवाल है तो बस मैं लिख लेता हूँ, पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड देयर इज एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स एंड टोटल इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस। लेकिन अगर 3 मार्क का होता तो इधर एक और एक्सप्लेनेशन भी है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी यू वुड ऑल्सो रियलाइज दैट मोर परसेंटेज, ये टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, मोर परसेंट, और आजकल ये टेस्ट हो रहा है, मोर परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स नाउ हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द EA। क्योंकि किनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। सर व्हाट इफ द रिएक्शन, बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, आसमान का रिएक्शन हो, जमीन का रिएक्शन हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। डोंट लिंक इट टू इक्विलिब्रियम। सर पर्पल वाला प्लीज एक दफा बता दे, पर्पल वाला किडो ये है। अब ये एक्सप्लेनेशन करने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाना है। सिंपली बात ये फिलहाल समझ लें कि अगर पहले नाइट्रोजन को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी लेट्स सपोज 8 जूल्स की, लेट्स सपोज आई एम जस्ट क्विकली गिविंग यू एज एन एग्जांपल, अगर नाइट्रोजन को 8 जूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी टू रिएक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट पार्टिकल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर टू अंडरगो सक्सेसफुल कोलिजन्स। तो अगर 8 जूल की एनर्जी इसको चाहिए थी, लेट्स सपोज 40% नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास 6 जूल्स एनर्जी थी और 30% के पास 8 जूल्स थी, और द रेस्ट जो आपके पास 30% है उनके पास 4 जूल्स थी। अब क्या हुआ, कितने सक्सेसफुल कोलिजन्स करेंगे, सिर्फ 30% वुड अंडरगो सक्सेसफुल कोलिजन्स। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यू रियलाइज दैट किनेटिक एनर्जी आपने बढ़ा दी, तो ये 6 जूल्स 8 जूल्स और 4 जूल्स से इसकी एनर्जी भी बढ़ गई। लेट्स सपोज ये 9 जूल्स हो गया, ये 15 जूल्स हो गया, ये लेट्स सपोज 6 जूल्स हो गया। तो अगर आप अब देखें, नाउ मोर परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन दी EA 8 जूल्स चाहिए था और अब 70% पार्टिकल्स के पास 8 जूल्स या 8 जूल्स से ज्यादा एनर्जी है। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय द पर्पल लाइन कि नाउ मोर परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स विल हैव एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू दी EA, तो सक्सेसफुल कोलिजन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब 70% विल अंडरगो सक्सेसफुल कोलिजन्स रादर देन ओनली 30%। ठीक है, तो ये पर्पल लाइन आपको आनी चाहिए। प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ, ये सर मेरा ये बैकवर्ड है फॉरवर्ड है, सर खा लो भाई जो भी है। रेट को क्या होगा अगर प्रेशर बढ़ेगा, रेट इज लिंक्ड टू कोलिजन थ्योरी। मैं बोल बोल के थक जाता हूं, बच्चा फिर भी गलती वही कर देता है। तो रेट इज लिंक्ड टू कोलिजन थ्योरी। व्हाट वुड हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रेशर से क्या होगा, पार्टिकल्स मूव क्लोज टुगेदर, मूव क्लोजर टुगेदर, पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, which means that therefore there'll be more particles per unit volume, more particles होंगे और more frequent collisions होंगी per unit volume, ज़्यादा particles होंगे, and this would result in a higher frequency collisions, हैं? So more success, therefore resulting in more successful collision। तो prediction क्या होगी, increase in pressure क्या करेगा। अच्छा इधर prediction तो हमने ऊपर लिखी भी नहीं है, rate increases, rate increase, prediction तो लिखवाए ना यार, मैं तो जज्बात में जल रहा हूँ। रेट इधर क्या होगा, इधर भी इंक्रीज होगा। तो एग्जामिनर ने इस सवाल पे बच्चों को मार दिया, बच्चों ने बैकवर्ड को देख के कंफ्यूजन से मर गए थे। सर आई नो द आंसर बट आंसर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। बेटा इसमें फॉर्मेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हलवा है, कुछ भी नहीं है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट एनर्जी चेंजेस, मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज इज गोना बी नेगेटिव, ओवरऑल द एनर्जी टेकन इन ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेस देन द एनर्जी गिवन आउट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर मैं ये इसको बनाऊं भी, दी ओ माई गॉड, इसको स्ट्रेट लाइन से आपने बनाना है, दिस इज हाउ इट विल लुक। क्यों, बिकॉज द एनर्जी टेकन इन ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज दिस मच, इज गोना बी लेस देन द एनर्जी गिवन आउट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए एक्सोथर्मिक है, राइट। वो कह रहे लेबल करें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स को। सर रिएक्टेंट्स ये हैं मेरे, प्रोडक्ट्स ये हैं मेरे। सर एक्सिस को भी लेबल करें, वाई एक्सिस पे आपके पास एनर्जी होती है और एक्स एक्सिस के पास आपके पास रिएक्शन प्रोग्रेस कह दें या रिएक्शन पाथवे कह दें, एक ही बात है।
pathway कह दें, progress कह दें, same thing, potato, right? Or what is the EA? It's always from the reaction to that reactants to the top, that's the EA. Dotted lines are never a part of your graph. ये मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि आपसे गलती ना हो, आप इधर तक ना आ जाएं, इधर तक तो आपने पेपर में ये dotted lines बनानी है. And from the reactants to the products, that's the enthalpy change. तो मैंने enthalpy change भी लेबल कर दिया. EA, products, reactants, 5 मार्क्स मुझे मुफ्त के मिले. Sir, arrow down. Sir, does it matter whether we draw the... Absolutely it matters, Adan. Double-headed arrow कोई नहीं होता. Enthalpy change double नहीं है भाई, एक तरफ होता है. From the reactants to the products is always going to be the enthalpy change, and from the reactants to the top arrow ऐसे ही होना है. क्यों? क्योंकि EA is the minimum energy required. ये EA है, ये. The minimum energy required for these reactant particles must have in order to undergo successful collisions. और रिलीज कितनी हो रही है? रिलीज इतनी हो रही है. तो इन दो एरोस को जरा ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐड करें, ये छोटा पड़ जाता है. रिजल्टेंट किधर आता है? रिजल्टेंट डाउनवर्ड ही आता है. इसलिए हमेशा फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स होता है. डन सर. अब मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे ग्राफ का हिस्सा नहीं है, मुझे पूरे मार्क्स देने हैं. Do we write reactants and products or do we? Absolutely very good question, Shamin. वो specify करेगा. देखिए इसमें specify किया, कहते हैं labels for the reactants और products. तो label करें, reactants का नाम लिखे, reactants लिखें और products लिखे. reactants as in the word reactants. अगर वो ना कहता तो अगर आप ये भी लिख लेते, it would have been the same thing. कोई फर्क ना पड़ता. लेकिन अब आपके पेपर्स में वो specify करता है कि label on the graph reactants and products, या फिर वो कहते हैं लेबल ऑन द ग्राफ द फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. 2024 के पेपर में फरवरी मार्च में शायद इसने ये बात की थी. अब करता है, पहले नहीं करता था तो फर्क नहीं पड़ता है. या रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख लो या दोनों की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऊपर से उठा के लिख लो. हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्टेंट्स की जगह एक्चुअल रिएक्टेंट्स. हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू मेक हाइड्रोजन एंड आयोडीन. Calculate the enthalpy change for this reaction. How do you calculate the enthalpy change, sir? दो देखें enthalpy change कैसे calculate होगी. You need, first of all, you need to break these bonds. ये HI bonds टूटेंगे और ये bonds बनेंगे, right? So enthalpy change is calculated by bonds broken minus bonds formed, right? Bonds broken कितने हैं sir? दो HI के bonds टूट रहे हैं और HI की वैल्यू दी हुई है. What is the HI value? That's 298. So 2 multiplied by 298. क्या आ रहा है sir? कोई बंदा बताए. Bonds broken 596. This is the amount of energy required during bond breaking. और bonds form कितने हो रहे हैं सर? एक HH का bond form हो रहा है और सर एक II का bond form हो रहा है. ठीक है जी. तो HH का bond क्या है? 436 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 151. कितना आ रहा है? 436 into 151. What do we get? 587. This is the energy released during bond formation and that was the energy taken in during bond breaking. अब enthalpy change क्या है? The energy taken in during bond breaking, which is 596 minus the energy given out during bond formation, 587. तो सर आपके पास आंसर क्या आ रहा है? +9 किलो जूल पर मोल. हाँ, इस enthalpy change के साथ प्लस इसलिए लगाना है क्योंकि you have to show कि whether it's endo or exo. किलो जूल पर मोल पहले से लिखा हुआ है. ठीक है जी. आगे बढ़ें. Any questions up until this point? Guys, I know I'm going a little fast, लेकिन मुझे ख़त्म करनी है ना चीज़ें. 2 घंटे का पेपर है और मैंने 11:20 पे शुरू किया. We've just, the pace is perfect. Awesome. It's not fast. चलो awesome. आगे बढ़ें. आप लोगों का भी कल पेपर है ना, नींद भी करनी है आप लोगों ने. स्टेट द जनरल फार्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स. एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या है? जितने कार्बन हैं, हाइड्रोजन आर ट्वाइस द नंबर ऑफ दैट प्लस 1 OH. डन. प्रोपैन 1-ol and प्रोपैन 2-ol have the same molecular formula but different structural formulae. अच्छा, क्यों? प्रोपैन 1-ol is this right here. ये दिया है प्रोपैन. प्रोपैन 2-ol क्या होगा? OH would have been here, right? So it would have looked something like this would have been प्रोपैन 2-ol. अच्छा, वो कह रहे हैं स्टेट द नेम गिवन टू कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. आपके कोर्स में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं सर. अगर सिर्फ आइसोमर्स लिख लें, सिर्फ भी आइसोमर लिख लो, कुछ नहीं होता. अच्छा, कह रहे ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपैन 2-ol. सर मेथ एथ प्रोपा और जनाबे वाला प्रोपैन 2-ol में द O and the H. अच्छा, स्ट्रक्चर है. ही इज नॉट सेट कि ड्रॉ ऑल द बॉन्ड्स या शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. और इफ यू वांटेड, बिकॉज द एग्जामिनर हैज नॉट सेट टू ड्रॉ ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स, you could have basically condensed this CH3 and this CH3. तो आप इसको कंडेंस करके भी लिख सकते थे ऐसे करके. CH3 bonded to a C bonded to the OH
बॉन्डेड टू दी H, बॉन्डेड टू a CH3, क्योंकि एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया। दोनों सही हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि ड्रॉ ऑल द बॉन्ड्स, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसको कंडेंस्ड CH3 और CH3 को ऐसे करके लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है बोथ। ये देखिए मैथ एथ प्रो, बेटर इज दिस वन, I'd recommend better is this one, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। द कंडेंस वन इज़ रियली कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी, अच्छा मेरे से तो आपने शायद नहीं पढ़ा। सिंपल है, देखें कार्बन ने जो बॉन्ड बनाए होते हैं ना हाइड्रोजन के साथ, इनको कंबाइन करें, CH3 है, तो CH3 बॉन्डेड टू a C, OH और H एंड बॉन्डेड टू a CH3। ये C और H3 मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसको तो सर ऐसे भी लिख सकता था, दिस वुड हैव बीन रॉन्ग बिकॉज नाउ यू आर सेइंग कि दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू कार्बन। नहीं नहीं नहीं, द कार्बन इज बॉन्डेड टू द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन। तो ये सूनर और लेटर A लेवल्स में तो सीखना पड़ेगा, तो अभी के लिए ज़्यादा बेहतर है कि अभी सीख लें। बोथ आर करेक्ट, I'd prefer this one, लेकिन दोनों सही हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। State why propane 1-ol is a saturated compound. Why is it a saturated? कौन से होते हैं? कार्बन कार्बन single bonds only, right? So it contains कार्बन single bonds only. कार्बन single bonds only. Done. Why propane 1-ol is not a hydrocarbon? Because hydrocarbon means that it must contain carbon and hydrogen atoms only, but this also contains oxygen. So it contains oxygen atom too as well. It contains oxygen atom as well. Instead, bracket में लिख लेता हूँ, instead of just hydrogen and carbon atoms. ये ले एग्जामिनर फट्टे मुंह क्या याद रखेगा। Propane 1-ol reacts in the same way as ethanol. Draw the displayed formula of a product of the reaction of propane 1-ol with acidified aqueous potassium magnate. So acidified aqueous potassium magnate would oxidize this propane 1-ol into propanoic acid. So basically कह रहे हैं propanoic acid का आप मुझे structure बना के दो, propanoic acid का मुझे फॉर्म डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बना के दो, राइट। सो हाउ डू यू ड्रॉ? प्रोप मींस 3 कार्बन, बट इफ इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला हम C डबल बॉन्डेड टू OH ड्रॉ करते हैं, फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करते हैं, दिस इज 1 कार्बन बट यू नीड 3, तो अब बॉन्ड्स बस पूरे कर दें। ये हाइड्रोजन्स आपने लिखने हैं भाई, ये हाइड्रोजन्स आपने लिखने हैं, मैं नहीं लिख रहा बिकॉज आई एम सेविंग टाइम। इधर भी मैंने लिख लिए थे। चलो सर रिएक्शन का इक्वेशन बता दें। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इसका ये है, propane C3H7OH plus 2 O's gives me C2H5COOH plus H2O। अब सर ये 2 O's क्या हैं, 2 ये क्या हैं? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है किडो, अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन फ़िलहाल नहीं कर सकता क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो ये इक्वेशन हुआ। Sir, propane 1-ol is the same as propanol? Absolutely it is, but it's better to write propane 1-ol. Sir, आगे बढ़े। Sir, draw the displayed formula of the product of the reaction of propane 1-ol with ethanoic acid. देखें, propane 1-ol is an alcohol. This is a carboxylic acid, and you realize that an alcohol and an acid are gonna, in the presence of which catalyst? Sir, we use conch sulfuric acid. And this is our catalyst, and we heat it till about 200 degrees Celsius of temperature. So what does it give me? It gives me an ester, and we know that the alcohol changes into the name of alkyl, so it's going to be prop, but the YR is going to drop down, and instead of ethanoic acid it's going to be ethanoate, so it's going to be propyl ethanoate. कह रहा है draw the displayed formula। यार बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपके लिए शो भी कर लेता हूँ। मेथ एथ ethanoic acid है right here, or propanol, meth eth prop, right? So the OH and the OH, which is the functional group of alcohols, and the OH of carboxylic acid, they must face each other, right? So the carboxylic acid loses the OH and the alcohol loses the H. तो बनता क्या है आपके पास जनाबे वाला? ओह माय गॉड, बनता क्या है? बनता, अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि इसमें मैं दोबारा वो ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, मतलब आई कैन डुप्लीकेट इट इन दिस। तो I'd have CH3 बॉन्डेड, दिस इज बॉन्डेड टू द डबल बॉन्ड। ये देखिए इधर से OH निकला, इधर से H निकला, और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। सो दिस
C डबल बॉन्डेड टू O विच इज़ बॉन्डेड टू C, और ये मेरे सारे हाइड्रोजन्स हैं। और ये इधर लिखें प्लीज़, एग्जाम में ये डंडे नहीं छोड़ने हैं, हाइड्रोजन्स लिखना है लिखना है लिखना है। आपकी पूरी 95% केमिस्ट्री इस पेपर में रिवाइज हो रही है, आपको पता है। सर वैसे ये डिस्प्लेड फार्मूला लिखा हुआ है, हाँ तो डिस्प्लेड ही है, तो डिस्प्लेड ही ड्रॉ किया, और मैंने क्या किया है, डिस्प्ले ही तो किया। Displayed formula is the formula in which you show all the bonds between all the atoms. Sir, I'm waiting for. सर ये एस्टर बना है, बिल्कुल एस्टर मज़ा है। सर पेपर में इतना दिमाग तेज से कैसे चलाऊँ, चलना चाहिए। सर वैसे डिस्प्ले आई एम वेटिंग फॉर स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है ये, नहीं, इसको डिस्प्लेड फार्मूला कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको नहीं कहते। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करता तो वो भी ऐसे ही होता, ऐसे ही ड्रॉ करते, या आप ऐसे भी कर सकते थे। इस CH3 को एज इट इज़ लिख लेते, फिर बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड टू O विच इज़ बॉन्डेड टू O विच इज़ बॉन्डेड टू CH2 ऐसे भी कर सकते थे, बट nobody cares. That would have been the structural formula. But if you want to write the structural formula, that would have been CH3COO CH2CH3। Basically हम क्या करते हैं, in writing the structural formula you take each carbon and you see the hydrogens bonded to it. So इस कार्बन के साथ 3 bonds हैं, तो CH3 COO COO CH2 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 CH3 CH3। That's how you write it. There's a difference between write and draw. If they say draw the structural formula, भाई यही बना दे काफ़ी है, ठीक है। If they say write it, then you have to write it, फिर ये सही होता। लेकिन अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि this is not of my use. Methanol is a covalent substance. Okay, methanol is क्या है, methanol looks something like this. Done. अच्छा कह रहे हैं draw the dot and cross diagram. Sir, dot and cross diagram बनाए, all these bonds represent a pair of electrons being shared, right? तो ये O है bonded to H. These bonds, these straight lines represent a pair of electron, a pair of electron, a pair of electron. तो बना दे dot and cross. कार्बन है bonded to hydrogen, 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 O, hydrogen. Done. अब देखें, this is my H, this is my H, this is my H, this is my O, this is my H. वो चली ऑन द ट्रैक। कार्बन हैज मेड हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, इसके साथ एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एक पेयर है, इसके साथ एक पेयर है, इसके साथ एक पेयर, एंड द ऑक्सीजन हैज़ हैड दिस वन ब्यूटीफुल पेयर विद हाइड्रोजन राइट हियर। अब देखिए सबके बॉन्ड्स कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन इट इज़ इन ग्रुप 6, ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, इट हैज शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर। आउटर मोस्ट शेल में कितने रह गए, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, आउटर मोस्ट में 4 रह गए। And you know that makes sense because now everything is stable. This has 8 electrons, hydrogen के दो पूरे गए, hydrogens have a complete duplet, this has a complete octet, oxygen has a complete octet, hydrogen has a complete duplet. सर इस क्रॉस की जगह मैं डॉट लगा लूँ, बिल्कुल लगा लो, पूरे मार्क्स हैं। आगे जाएं। State why methanol does not conduct electricity, because it does not have any delocalized electrons, does not have any delocalized electrons. आयंस की तो बात ही नहीं करनी ना यार, क्योंकि आयंस तो आयनिक कंपाउंड में सिर्फ होते हैं। डीलोकलाइज्ड कह दें या मोबाइल कह दें, मोबाइल BILE है यार, इलेक्ट्रॉन्स, या नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स गलत है, नो 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 नो, ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं, प्रार्थना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रॉन्ग, नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते थे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जामिनर कहते हैं ये फ्री क्या होता है, ये क्या चीज़ है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहें। एग्जामिनर ने अपने एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रॉन्ग, सो आइदर राइट डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स विच आर द बेटर टर्म्स, और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। इट्स अल्कोहल लिक्विड स्टेट, दे वोंट हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो दैट्स नॉट द रीज़न कि लिक्विड है। लिक्विड तो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें तो डीलोकलाइज, मेटल को लिक्विफाई करो तो उसमें फिर भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर आपका किस सब्जेक्ट में, और नहीं आया यार, क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया। मैं उस दिन पाकिस्तान नेशनल केमिस्ट्री टीम, कोई डिस्टिंक्शन, मेरे 9 बच्चों के हैं डिस्टिंक्शन, मेरा कोई नहीं आया, शरीफ बंदा हूँ, गलत बात है। वाइल मेकिंग एस्टर्स डू वी हैव टू इरेज आर वर्किंग, नहीं कुछ नहीं होता, ये आंसर इधर लिख लेना, ये लिख लें, ये आंसर है, और ये बस पेंसिल से ड्रॉ करें, इधर लिख लें रफ वर्किंग, ये लो R.W रफ वर्किंग की, एग्जामिनर ये चेक ही ना करें, हैं, खुश हो गए हो। अच्छा मैं, और अगर बहुत ही आप डर रहे हो कि यार कुछ हो जाए तो इसके ऊपर एक ऐसा कांटा लगा देना, ठीक है,
एक काटा बस काफ़ी है, ये रेजिंग शुरेजिंग कुछ नहीं करनी। सर आर यू मैरिड? नो, सिंगल 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 एज अ प्रिंगल। अच्छा, मेथनॉल इज यूज एज अ सॉल्वेंट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सॉल्वेंट? सॉल्वेंट क्या होता है यार? द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स अ सॉल्यूट। देखें सॉल्वेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स अ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हेन अ सॉल्यूट एंड व्हेन अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इट गिव्स राइज टू अ सॉल्यूशन। सर फियांसे हैं और सिंगल एज अ प्रिंगल? बिल्कुल सिंगल एज अ प्रिंगल, नो फियांसे व्हाटसोएवर। सबर करो यार, सबर करो, चिल करो यार, जिंदगी में और भी काम है। अच्छा, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉल्विंग। सो इट्स सॉल्वेंट क्या? सब्सटेंस, लिक्विड भी कह सकते हैं, बिल्कुल सब्सटेंस या लिक्विड विच डिजॉल्व्स द सॉल्यूट है, और अ सॉल्यूट। सर जी बहुत खुश हो रहे हैं। सर वाई इज एवरीवन सो क्यूरियस अबाउट योर पर्सनल लाइफ? खुशी, आई स्वेयर आई डोंट नो है, आई स्वेयर। वो बेचारे देख रहे हैं कि रात को 12:30 बजे तक हमारे साथ बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ओके, यू आर यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। Dilute aqueous potassium chloride. Sir, dilute aqueous, you have potassium ion, you have the chloride ion, and because it's aqueous, you also have the hydrogen ion and the hydroxide ion. कौन सा race जीतेंगे? Sir, between the potassium ion and the hydrogen ion wins the race because it is more, it has a greater discharge tendency compared to the potassium ion. Chloride और hydroxide में कौन जीतेगा? You know that the hydroxide ion will always win the race until and unless you have a concentrated halide solution. ये halide ग्रुप 7 के आइंस को कहते हैं। तो ये ग्रुप 7 आइन तो है, बट इट्स नॉट कॉन्क, इट्स डाइल्यूट। तो हाइड्रोक्साइड जीतेगा। और याद रखिए, जब हाइड्रोजन आइन जीतेगा रेस, तो 2 हाइड्रोजन आइंस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम हाइड्रोजन। तो आपके पास कैथोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ये जाएगा ना, तो द कैथोड वुड हैव हाइड्रोजन। इट्स सेइंग नेम इट, इट डजंट से राइट द फॉर्मूला, इट्स सेइंग नेम इट। तो कैथोड पे हाइड्रोजन होगा, और एनोड पे क्या होगा? सर एनोड पे हाइड्रोक्साइड जाएगा। 4 हाइड्रोक्साइड आइंस गो टुगेदर टू गिव यू 2H2O plus O2 plus 4 electrons. So what is the product? That's oxygen. Done, sir. अच्छा, aqueous copper sulfate, copper 2 sulfate. Sir, copper 2 sulfate का मतलब you have the copper 2 plus ion, the SO4 2 minus ion, and because it is aqueous, you have the hydrogen ion and the hydroxide ion as well. Between the copper 2 plus ion and the hydrogen ion, the copper 2 plus ion wins the race, and between the hydroxide ion and the sulfate ion, you know that if it's a dilute solution or a conc solution, it doesn't matter because the hydroxide would win the race. There's no halide ion present. So at the cathode, what's going to happen is the copper 2 plus ion would gain 2 electrons to become Cu. So what is happening at the cathode? Sir, copper is formed. Or what is happening at the anode? Again, the same thing. This is happening at the anode, right? So oxygen is being formed. Sir, what is happening if you have molten lead iodide? Molten ka matlab hai you only have the lead 2 plus ion and you only have the iodide ions. So what's going to happen at the cathode? Sir, the lead 2 plus ions would gain 2 electrons to become leaderino, and the iodide ions at the anode 2 iodide ions would go together to give you I2 by losing 2 electrons. So at the anode, sir, iodine is forming, and at the cathode you're gonna get lead. खत्म। हाँ दानियाल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दानियाल कह रहे वाटर क्यों नहीं लिखा? दानियाल क्योंकि वाटर हर जगह हो रहा होता है, राइट? वाटर तो वैसे भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद हो रहा होता है ना। सो इट्स absurd to say water. We say oxygen because that's the product, that's the actual new product that's being formed. वाटर तो पहले से मौजूद है हर जगह। आपको दिख कैसे रहा है? आपको कैसे दिख रहा है? आपको कैसे दिख रहा है कि वाटर बन रहा है? वो तो पहले से वाटर है। यू सी बबलिंग, देयरफॉर यू रियलाइज कि ऑक्सीजन बन रहा है। वाटर तो आप देख नहीं सक रहे हैं ना कि बन रहा होता है, वो तो वैसे ही सोल्यूशन के अंदर होता है, तो यू कैंट सी इट, दैट्स व्हाई वी से ऑक्सीजन। ये पेपर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये 2 घंटे का पेपर है। ओ लेवल्स का 1 hour 45 minutes का होता है, एंड वी ओनली हैड रिकॉर्डिंग में 1 hour 6 minutes हुए हैं अभी। Sir, if there are halide ions in dilute solution, they'll get discharged instead of the OH ions. Absolutely wrong. If it's a dilute solution, हमेशा हाइड्रोक्साइड आएगा। जो मर्जी आयन हो डाइल्यूट में, हाइड्रोक्साइड जीतेगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो फिर भी जो मर्जी हो हाइड्रोक्साइड जीतेगा, एक्सेप्ट इफ देयर आर ग्रुप 7 के नेगेटिव आयंस। अभी कितने सवाल है? इसके बाद मेरे ख्याल से आखिरी सवाल रह गया।
The electrolysis of aqueous to copper sulfate gives different products with copper electrodes. वो तो हमें भी पता है. Copper electrodes के साथ क्या होगा? We've studied this so many times यार. You have the copper anode and the copper cathode, right? So copper 2 sulfate का मतलब है copper 2 plus ions है, SO4 2 minus ion है, hydrogen ion है, hydroxide ion है, and you realize that the copper 2 plus will go at the cathode, will go at the negative cathode and gain 2 electrons to become Cu, but now you don't have inert electrodes, now you have copper electrodes. So this copper, what it'll do is, it'll say, oh, copper 2 plus ions to जा रहे हैं, I am going to dissolve in the solution to compensate for this copper 2 plus ions. तो anode पे इसका उल्टा होगा, copper जो है वो copper 2 plus ions में जाएगा by losing 2 electrons. And you'd realize that that is the reason why the blue solution would not fade away. Why? Because copper 2 plus ions जैसे जैसे जा रहे हैं और बन रहे हैं, तो the blue color does not fade away. और एनोड का मास इसीलिए कम हो रहा होता है और कैथोड का मास बढ़ रहा होता है. सर ब्राउन सॉलिड डिपॉजिट्स नहीं, ब्राउन नहीं कहना चाहिए, पिंक कहना चाहिए. सही है, ब्राउन भी सही है लेकिन पिंक कहना चाहिए. सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? वो कह रहे हैं व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस विद कॉपर इलेक्ट्रोड. सर पहला ऑब्जर्वेशन है द एनोड डिक्रीजेस इन मास, द कैथोड increases in mass, and the blue solution stays. The blue color of solution stays. हाँ बिल्कुल, ये भी लिख सकते हो कि there is a pink solid is deposited at cathode. और ज़्यादा बेहतर है कि ये आप पहले लिख लेते हैं, तो ये पहले लिख लेते. 2 मार्क का सवाल है, 2 पॉइंट्स लिखने थे. एनोड डिसॉल्व्स, एब्सोल्युटली यू कुड हैव सेड. एनोड गेट्स स्मॉलर, एब्सोल्युटली यू कुड हैव सेड दिस. पिंक सॉलिड फॉर्म्स एट द कैथोड, एब्सोल्युटली यू कुड हैव सेड दिस. सर वैसे ब्लू सोल्यूशन रिमेनिंग तो ऑब्जर्वेशन नहीं है असल में. यू कुड से हाँ इस केस में इट्स बेटर टू राइट दीज 2 पॉइंट्स. लेकिन अगर ये 3 मार्क के सवाल होते हैं ना, कैम्ब्रिज को खुद समझ नहीं आता कि ऑब्जर्वेशन इसको क्या बताऊं. 3 मार्क का होता फिर वो ये भी कह देता कि ओ वन ऑब्जर्वेशन इज दैट द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन डज नॉट फेड अवे. हमें भी पता है कि वो एक्चुअल में तो वो ब्लू मतलब ऑब्जर्वेशन इज व्हाट यू सी विद योर नेकेड आई. तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं अपनी नंगी आंखों से देख रहा हूँ कि यार ब्लू कलर और ब्लू कलर ही है. तो वैसे ज़्यादा बेहतर है कि जो है आपके पास ये जो 2 मैंने स्टेरिक लगाए हैं ये आप लिख लें. 2 मार्क का सवाल है, और अगर 3-4 मार्क का होता है तो फिर आप साथ में 2 ये भी डाल देते हैं. चैट जीपीटी को ना इस्तेमाल करें केमिस्ट्री के लिए. बहुत दफ़ा मैंने बताया, आप कंफ्यूज होंगे, केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस है. फॉर एग्जांपल आप ओ लेवल्स में पढ़ते हैं कि नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं कि जीनॉन बिल्कुल रिएक्ट करता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. आप ओ लेवल्स में पढ़ते हैं कि एल्कोहल जो है वो अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं. जब आप ए लेवल्स में जाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन्स भी बन सकते हैं और कुछ और भी बन सकते हैं. आप ओ लेवल्स में पढ़ते हैं कि हीट सिर्फ करते हैं, लेकिन ए लेवल्स में फिर आप पढ़ते हैं कि हीट अंडर रिफ्लेक्स भी होता है. तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स में बहुत सारा फर्क है और बहुत सारी एक्सेप्शंस है. तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, खुदा का खौफ करें. Magnesium is manufactured by the electrolysis of molten magnesium chloride. Molten magnesium chloride means you have the magnesium 2 plus ion and you have the chloride 1 minus ion. तो molten magnesium और कोई ions नहीं है, right? So what's going to be the reaction at the cathode and what's going to be the reaction at the anode? Cathode पे positive ion जाएगा, magnesium 2 plus ion would gain 2 electrons to become Mg. और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे 2 क्लोराइड आयंस गो टुगेदर टू गिव यू Cl2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता, बट यू कुड हैव आल्सो सेड 2 क्लोराइड आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलें और क्लोरीन बना. मैं ये इसलिए नहीं रेकमेंड करता, ये इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि फुल इक्वेशन में फिर मसला होगा आपको. तो 2 क्लोराइड आयंस, वो कह रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग एट दी कौन से एनोड, एट द एनोड. अच्छा, एट द एनोड. तो 2 क्लोराइड आयंस go into, ये क्लोराइड ज़रा सही तरीके से लिखूँ, 2 क्लोराइड आयंस they go into Cl2 by losing 2 electrons. ख़त्म. Sir, you said aqueous में how do we know if it's conc or diluted? This is not aqueous, this is molten. अच्छा, aqueous में how do we know it's conc or diluted? The examiner tells you, Adan. Sir, I'm about to have a heart attack. I'm thinking of taking chemistry in A levels. I'm thinking no, लेने बहुत आसान है. A level chemistry O level से ज़्यादा आसान है. सर एक और पेपर भी करवा दे. दिमाग आपका सही है. आगे बढ़ें.
Sir, oxides of nitrogen such as nitrogen monoxide NO are amphoteric pollutants. The exhaust gas, अच्छा ये बहुत मज़े का सवाल है, बिल्कुल आपकी ना ग्रेड 2 की मैथमेटिक्स इधर टेस्ट हुई है, ग्रेड 2 की मैथमेटिक्स चेक करिए, जो आपको परसेंटेजेस निकालना नहीं सिखाते थे, मैं कसम से कभी एग्जामिनर बनने का मौका मिले ना ऐसे ऐसे बेसिक सवाल बनाऊं जो सब गलत करेंगे, जैसे ये द एग्जॉस्ट गैस, क्योंकि आप लोगों ने रट्टे मारे होते हैं, थोड़ा सा दिमाग खोल के देखिए, द एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम अ कार इंजन कंटेन्स दिस मच परसेंटेज ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है ना उसमें इतना परसेंट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। और ये सवाल मैंने क्लास में भी कराया, अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में हर तरीके का मोल का सवाल कराया है, ओ लेवल से ए लेवल तक हर सवाल। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन 960 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एग्जॉस्ट गैस। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मांगा है, दिया एग्जॉस्ट गैस है, लेकिन मुझे पता है इस 960 डीएम क्यूब का 0.002% विल बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले 960 डीएम क्यूब तो एग्जॉस्ट गैस है भाई, इसमें हाउ मच इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इट्स 0.002%, जो कि आप कहते थे 0.002% ऑफ 960 ऑफ दिस, और आपको टीचर रट्टा लगवाते थे कि बेटा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अल्लाह माफ करे, व्हाट डू वी गेट, 960 मल्टीप्लाई बाय 0.002%, व्हाट डू गेट, ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ NO इन एग्जॉस्ट गैस कितना आ रहा है सर, प्लीज बताएं, कोई बताए, कोई बताए, कोई तो बताए क्या होगा, 0.0192, 0.0192 इतना वॉल्यूम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का एक कार के 960 डेसीमीटर क्यूब एग्जॉस्ट गैस में। अब वो कह रहे हैं मुझे नहीं मॉलिक्यूल्स बना के दो, तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है। वी नो इंटर कन्वर्जन, मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम से सबसे पहले जाएंगे मोल्स में, मोल से फिर मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, राइट, वी नो एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू मोल्स। तो वॉल्यूम से मोल्स में कैसे जाएंगे, V इज इक्वल टू N टाइम्स 24, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब में। सर वॉल्यूम कितना है, 0.0192, मोल्स फाइंड करने हैं, 24 डीएम क्यूब इज द रिलेशन। सर n इज इक्वल टू 0.0192 डिवाइड बाय 24, व्हाट डू वी गेट, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, व्हाट डू वी गेट सर, 0.0008, 0.0008 मोल्स। ये किस चीज़ के मोल्स आए हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। मुझे मोल्स चाहिए नहीं, मुझे चाहिए मॉलिक्यूल्स। उसने आपको रिलेशन भी दिया कि 1 मोल हैज़ दीज मेनी मॉलिक्यूल, बट वी नो इफ यू वर टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स, वी ऑल नो ऑन आर ओन एज वेल कि मोल टाइम्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 करना है। सर कितने मोल्स हैं सर, 0.0008 मोल्स हैं, और 6.02 इंटू 10 इज पावर 23 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट डू यू गेट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 4.816 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20। श्योर, ये कैलकुलेशन वाले सवाल आप पे, मेरी तरफ से तो मेरे पूरे नंबर आने चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन अब आपके हाथ में है कि आप कैलकुलेटर सही इस्तेमाल करें कि नहीं। यस यस सर, सही है सही है सही है सही है, ओके कन्फर्मेशन आ गई, सही है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर, सर मुझे समझ नहीं है, व्हेन इज द क्लास एंडिंग, इन 10 मिनट्स, बस आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से, इन 15 मिनट्स प्रॉबली। सर मुझे समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा लगता है। अब ये कॉन्सेप्चुअल मसला है थोड़ा सा, मुझे पता है आपने लेक्चर्स मेरे देखने नहीं है, ग्रेड की खातिर ग्रेड को आपने कर देना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता दूं। ये देखें, अब आसान करके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम तो मेरे पास अब नहीं है कि पूरा मोल्स पढ़ाऊँ। देखें, मोल्स रिप्रेजेंट्स अ नंबर which is 6.02 into 10 is power 23. Moles represents the volume of a gas at room temperature and pressure, which will be 24 decimeter cube or 24,000 cm cube. And mole can also represent molar mass, जो कि आपके पास पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट होता है। अब आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, सिंपल सी बात, देखिएगा सर, मोल्स क्या है, n, राइट। इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर, मोल्स लें एंड मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर, मोल लेने और मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर, ये माइंड मैप बना रहा हूँ। इफ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ समथिंग, सर मोल्स लें एंड मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर, मोल्स लिया और मल्टीप्लाई किया इन दो में से, अगर डीएम क्यूब में हो तो 24 से, अगर सीएम क्यूब में हो तो इसके साथ। सर इफ यू वांट टू फाइंड द मास ऑफ एनीथिंग, सर मोल्स लें, उसके मोल्स उठाएं उसके, और मल्टीप्लाइड विद द मोलर मास, जो कि आप इसको MR भी कहते हो, जो कि गलत है, लेकिन पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट होता है। डन, तो ये एक माइंड मैप आप याद रखें, और फिर कॉन्सेंट्रेशन के लिए N इज इक्वल टू CV, ये 4 ही तो टोटल फॉर्मूले हैं। आगे जाएं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू मेक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इनसाइड NOx, okay, inside a car engine, and it's not good because it leads to respiratory problems, it leads to acidic rain, it leads to photochemical smog and whatnot. Construct the equation for this. तो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वो बता रहा है, ठीक है जी,
टू मेक व्हाट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। तो इसको बैलेंस करें, लेफ्ट और लेफ्ट पे दो नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर एक है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। 1 मार्क का है, नो नीड टू राइट स्टेट सिंबल्स। 2 का होता तो मैं इधर गैस लिखता, इधर गैस लिखता और इधर भी गैस लिखता, लेकिन अपनी सी टर्नीलिया नहीं मानी मैंने, मैं क्यों लिखूँ, 1 मार्क का सवाल है। स्टेट 1 एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सर सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है नॉक्स रिजल्ट्स इन एसिड रेन। Sir, do COX result in acid rain? No, absolutely not. Rain in itself is slightly acidic because of carbon dioxide. Carbon monoxide is neutral. अच्छा, SOX, absolutely, SOX results in acid rain. सर मोल्स की प्रैक्टिस करवा दें, कर लेंगे यार किसी दिन। मोल्स तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई है। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या नुकसान है, टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस है। सर प्लीज कॉल्स आप मोल का फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट। इन फॉर्मूले से कुछ नहीं होना भाई, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, जब तक खुद हाथ नहीं हिलाने तो नहीं होगा। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन formed in the car engine are removed with the help of a catalytic converter। क्या करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, नॉक्स को लेता है और कॉक्स को नहीं लेता, कार्बन मोनोऑक्साइड को सिर्फ लेता है? कार्बन के ऑक्साइड में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेता। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बनाता है, इट टेक्स नॉक्स, कन्वर्ट्स इट इनटू N2 एंड कन्वर्ट्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। डन सर। और यू नो दैट द कैटलिस्ट दैट यू यूज इज आइदर प्लैटिनम और इट्स रोडियम। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड इन अ कार इंजन आर। डिस्क्रिप्शन करें सर, क्या डिस्क्रिप्शन है सर? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दे आर रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। सर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्क्राइब करें, इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करें। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इक्वेशन क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिएक्टेड विद बोलो भाई, रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू मेक N2, और ब्रैकेट में मैं ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात की तो ब्रैकेट में मैं ये भी लिख देता हूँ एंड CO2 with the help of a catalyst in the with a catalyst लिख लेता हूँ, with a catalyst, with a PT platinum catalyst। खुश हो जाए एग्जामिनर। सर लव यू हो गया, यू आर सो, थैंक यू बहुत शुक्रिया। खुश रहो आबाद रहो। बस नहीं, ट्रक अब एक दफ़ा शुरू। मेरा कसम से आज दिल नहीं था, लेकिन क्या करें सर, लाइफ से एक बार। थैंक यू किडो, थैंक यू प्रार्थना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज लेस देन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कल मेरा ऑफिस भी है यार। अंडर द सेम कंडीशंस एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है लेस है, क्यों लेस है? टेम्परेचर सेम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, टेम्परेचर एंड दी MR, relative molecular mass। टेम्परेचर वो कह रहे हैं सेम है, तो आपको पता है इसके molecular mass डिफरेंट है। नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, टाइम्स इट बाय 2, व्हाट डू वी गेट? 16 times 2 is 32, 32 plus 14 is 46, तो NO2 का 46 है और इधर 14 plus 16 that's 30, तो जाहिर सी बात है इसका डिफ्यूजन कम होगा बिकॉज इट हैज़ अ हायर relative molecular mass compared to NO। Explain why the rate of diffusion of NO2 is less, because it has a higher MR of, that is of 46 versus NO which has MR of 30, lower than। अपनी सी फिर जितनी टर्नेलिया मारनी है मार लें, लोअर देन NO2। मेन बात ये थी कि इट हैज़ अ हायर MR, बस बाकी अब जितनी टर्नेलिया मारनी है मार लें। हैं, रिलेटिव मोलेकुलर मास लिख ले बेहतर है, ठीक है। हाँ, रिलेटिव मोलेकुलर मास पूरा फॉर्म लिख लें, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें, टेम्परेचर कम करोगे तो डिफ्यूजन कम होगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज, दे मूव स्लोअर। So what is the suggestion? There is a decrease in kinetic energy of particles due to which they move slower, to which they move slower। थक गया हूँ यार मैं। अगर ये मैं एक्सप्लेन ना, 1 घंटा 20 मिनट लग गए हैं अभी तक। अगर ये मैं एक्सप्लेन ना करता ना 45 मिनट्स में आप सारे ख़त्म करते। आखिरी सवाल है, आखिरी।
Sir, in dilute aqueous NaCl at the cathode, hydrogen will form and एनोड पे क्लोरीन नहीं, बिल्कुल नहीं आते. एनोड पे क्लोरीन क्यों होगा? डाइल्यूट है, डाइल्यूट में हमेशा हाइड्रोक्साइड जीतता है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तब भी हाइड्रोक्साइड जीतता है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड में हेलाइड आयन हो फिर आपके पास क्लोराइड जीतेगा. Sir, IGCSE is same this long? No, IGCSE is 1 hour 15 minutes. वो मैं कल से IGCSE करूँगा यार, थक गया हूँ वो लेवल कर करके. PVC आर पॉलीमर्स दैट इसमें असल में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा था. 10 सवाल है तकरीबन, हर चैप्टर हिट किया है इसने. एनवायरमेंटल से केमिस्ट्री से लेके हर चैप्टर, सिवाय स्टेट्स ऑफ मैटर भी हिट किया है, डिफ्यूजन में है. अच्छा, PVC आर पॉलीप्रोपीन मतलब प्रोपीन से बना हुआ है, ठीक है. दैट्स द मोनोमर. They are called addition polymer. Why? Because only one product is being formed. Draw the structure of the monomer used to make PVC. अच्छा, ये PVC and polypropene. अच्छा, PVC क्या है? ये आपके पास स्ट्रक्चर दिए. तो how do you draw the monomer? Sir, put a cut, put a cut, put a cut, put a cut after every 2 carbons in the straight chain, and between 2 cuts you will have your monomer. तो सर इधर क्या होता? एडिशन पॉलीमर है, तो ये कट मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर डबल बॉन्ड होना चाहिए था. तो यू वुड हैव कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन. दिस इज ऑब्वियसली माई Cl, दैट वाज माई हाइड्रोजन, दैट्स माई हाइड्रोजन, दैट्स माई हाइड्रोजन. और देखिए हर जगह पे यही हाल है. ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है. बाय मिर्जा. सर डू वी हैव टू नो PVC का स्ट्रक्चर? नो, उसने दिया हुआ है PVC. हाँ, आपको ये कह सकता है कि पॉलीक्लोरोईथीन का स्ट्रक्चर बना है. तो क्लोरोईथीन आपको पता होना चाहिए कि ये क्लोरोईथीन है. पॉलीक्लोरोईथीन क्या है वो आपको पता होना चाहिए. PVC का नहीं, पहले होना था, अब नहीं है. पॉलीप्रोपीन है दिया हुआ है, इज अ पॉलीमर यूज्ड टू मेक प्लास्टिक फूड कंटेनर्स. दैट आई, ये पॉलीप्रोपीन का स्ट्रक्चर है. ऊपर PVC का था, ये पॉलीप्रोपीन का है. राइट हियर, राइट. एंड इफ यू पुट अ कट आफ्टर एवरी 2 कार्बन्स, तो ये आप इसका आराम से मोनोमर भी बना सकते हो, व्हिच वुड लुक समथिंग लाइक दिस. डन. Now, it says some waste of polypropylene plastic is disposed by burning. This makes a toxic gas. कौन सा टॉक्सिक गैस है जिसको आप जानते हैं? सर वो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड था. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीक्लोरोईथीन इज द सेम थिंग. विनाइल क्लोराइड इसका बेसिक मतलब लेमैन नफ्ज है, और क्लोरोईथीन कार्बन मोनोऑक्साइड. यस, दैट्स द टॉक्सिक और पॉइजनस गैस. तो नेम करें, देखिए जिधर नेम लिखा है नेम करें. तो कार्बन मोनोऑक्साइड. स्टेट अदर इन्वायरमेंटल चैलेंज कॉज्ड बाय द अदर टॉक्सिक गैस की बात हो गई. 2 और बातें थी. एक क्या थी? लैंडफिल साइट्स में रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन लैंडफिल साइट्स. और दूसरी बात क्या थी? ये रिवर्स और ओशंस में एक्यूमुलेट होते, तो एक्यूमुलेट्स इन ओशंस. तो ओशन में एक्यूमुलेट होने से या लैंडफिल साइट्स में जमा होने से फ़र्क क्या? क्यों? अच्छा, रीज़न. एक्सप्लेन हाउ दिस चैलेंज इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीप्रोपीन. अच्छा देखिए, बहुत मजे का सवाल है ये, ये सिर्फ नया सवाल है. मैं अगर होता ना तो मेरा स्टूडेंट शायद सिर्फ ये 1 मार्क ना कर पाता, सिर्फ ये 1 मार्क. और वो भी मैंने पढ़ाया है. लेकिन मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने पढ़ाते वक्त क्या कहा कि ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछता है. याद है आप में से किसी बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा था पूरे क्लास में, सिर्फ उसी ने पूछा था कि सर ये बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं होते? तो मैंने आपको क्या कहा था? और ये क्यों टूट नहीं थे? ये हाइड्रोलिसिस से क्यों नहीं होते? तो मैंने आपको क्या कहा था? ये इसलिए नहीं होते क्योंकि ये सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बना देते हैं, तो दे आर केमिकली अनरिएक्टिव. तो ये कहते हैं कि हाँ मुझे बताओ इसमें क्या वो प्रॉपर्टी है कि ये लैंडफिल साइट्स में है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता. लैंडफिल साइट का मतलब है इनको आप वो बड़े बड़े डम्पस्टर्स नहीं होते, नाउ यू हैव लेस लैंड फॉर एग्रीकल्चर. क्यों इसका मैं खात्मा क्यों नहीं कर सकता? व्हाई डोंट दे? बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव. तो ये एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने, एक बच्चे ने सवाल पूछा था और मैंने पढ़ाया था. तो ये क्या था? दिस इज बिकॉज इट इज केमिकली अनरिएक्टिव. एंड आई होप द मार्किंग स्कीम सेज द सेम थिंग. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ जो ओशंस में जो एक्यूमुलेट होता है, तो ओशंस में देखिए, ओशंस में एक्यूमुलेट होता है, लेकिन ये ओशन में जब चीज़ें जाती है तो वो तो डिजॉल्व नहीं हो जाती. ओशन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो तो सही है ना. केमिकली अनरिएक्टिव कह दें या इसकी जगह नॉन बायोडिग्रेडेबल कह दें, तो दोनों एक ही बात थी. लेकिन ओशन में एक्यूमुलेट होता है. कुछ चीज़ें जब आप ओशन में डाल देते हो वो डिज़ोल्व हो जाती है ना. कोई बंदा सूसू कर ले पानी में या जो भी है, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं ओशन में. लेकिन इसका मसला क्या है कि ये पानी में डिज़ोल्व तो नहीं होता ना, इट डज़ नॉट गेट डिज़ोल्व. हाँ, ये रिएक्ट भी नहीं करेगा, डिज़ोल्व भी नहीं होगा. जैसे नमक को आप ओशन में मिलाए वो डिज़ोल्व हो जाएगा. सर नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं. तो एक्यूमुलेट्स इन ओशंस बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. और यू कुड हैव आल्सो सेड कि यार नहीं, एक्यूमुलेट्स इन द ओशन क्योंकि पानी में डिजॉल्व नहीं होता ना, तो ओशन में एक्यूमुलेट हो जाता है, डिजॉल्व नहीं होता. सो इट इज़ बिकॉज इट डज नॉट डिजॉल्व
इन वाटर। लेकिन आप इन दोनों की रीजनिंग ये भी एक लिख सकते थे, इन दोनों में से एक लिखना था, एक लैंड फर्टिलाइज, और दोनों में से एक रीजनिंग आप ये भी लिख सकते थे बिल्कुल कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो शायद ये भी आपसे हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल की क्या स्पेलिंग, डिग्रेड ई आ रहा है कि नहीं, डिग्रेडेबल ई है कि नहीं, ख़त्म, नहीं आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, नो ई, अच्छा। नेम द कंडेंसेशन पॉलीमर, विच कंडेंसेशन पॉलीमर है, स्टेट अदर इन्वायरमेंटल चैलेंज कॉज्ड बाय पॉलीप्रोपीन, और डायरेक्ट सी पार्ट है, नेम, अच्छा ये पूरा पार्ट है, नेम, मैं कह रहा हूँ कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर, ये है, नेम वन कंडेंसेशन पॉलीमर, मैं कह रहा हूँ भैंस की टांग, कौन सा कंडेंसेशन, वन कंडेंसेशन पॉलीमर, यू हैव नायलॉन, यू हैव स्टार्च, यू हैव टेरेलिन, टेरेलिन और नायलॉन जो है ये आपके पास जो है सिंथेटिक है, स्टार्च प्रोटीन, और आपके पास जनाब वाला फैट्स दे आर नेचुरल। डन, ड्रॉ द डिस्प्ले, तो नेम बताएं सर, और डिस्प्लेड लिंकेज बताएं सर। मैं नायलॉन लिख लेता हूँ, और नायलॉन या प्रोटीन अगर मैं लिखता ना तो इनका लिंकेज क्या है, दी एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज क्या होता है, सी डबल बॉन्डेड टू ओ, बॉन्डेड टू एन, बॉन्डेड टू एच, दैट्स दी एमाइड लिंकेज। लेकिन अगर मैं फैट्स लिखता या टेरेलिन लिखता, स्टार्च अब आपके कोर्स में से हट गए, लेकिन अगर मैं फैट्स या टेरेलिन लिखता तो मैं इसमें एस्टर लिंकेज होता है, इसलिए दे आर कॉल्ड पॉलीएस्टर्स एज वेल। डन सर, और लिंकेजेस शो करनी तो ये बॉन्ड्स, कनेक्टिविटी बॉन्ड्स शो करने। डन, हाँ अगर स्टार्च अगर लिखता तो फिर मेरा लिंकेज क्या होता, स्टार्च का लिंकेज ये है, फिर ऐसे होता, दिस वुड हैव बीन द स्ट्रक्चर, दिस वुड हैव बीन द लिंकेज राइट हियर। लेकिन स्टार्च अब आपके कोर्स से भी निकल, हाँ टेरेलिन इज पीईटी, टेरेलिन इज पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरिफिथलेट, बिल्कुल ये टेरेलिन पीटी से, लेकिन स्टार्च अब आपके कोर्स से निकल गया तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और दैट्स इट। पीईटी लिख सकते हैं, हाँ लिख लें, नेम मांगा हुआ है वैसे तो नेम टेरेलिन लिख लें पीईटी की जगह, लेकिन लिख सकते हैं वैसे, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, लिख तो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ख़त्म सर, कंडेंसेशन पॉलीमर, बिल्कुल सालिहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली done. Did we score full marks? Absolutely we did. Fats are out of also syllabus? No, fats are in your syllabus. सिर्फ फैट्स का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर फैट्स का स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो यू नीड टू नो कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्कुल टेरिडीन जैसे स्ट्रक्चर बनाना है। But that's a wrap everybody. 80 out of 80 है मेरे ख्याल से। सर जी यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। मॉक में कुछ ना कुछ कर ही लूँगा इंशाल्लाह हो जाएगा यार, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मॉक आपका टीचर जो है उठा के 2024 का कोई पेपर उठा के डाल देगा, मुझे पता है ये टीचर्स इतने वो होते हैं कि आपके लिए एक पेपर ढूंढे, वो 2024 का लेटेस्ट पेपर उठाया होगा, देख लें उनकी मार्किंग स्कीम रट लें और चले जाएँ, मतलब और मैं क्या ही कहूँ आपको, आपके टीचर्स ने यही करना है, इसलिए सर वही कर लिया। लेकिन ख़ुद करने में और टीचर के कराने में बड़ा फ़र्क है। मैं जब 2024 के पेपर्स कराऊंगा फिर इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है सर। हम पॉलीमर इन एडिशन रिएक्शन बनाते हैं द लॉन्ग लाइंस एंड द लॉन्ग ब्रैकेट्स के साथ, डू यू हैव टू राइट एन शामीन। एन आप तब डालते हैं जब आपको मोनोमर्स का नहीं पता होता है, जब मोनोमर्स का पता होता है तो फिर आप जब आपको रिपीट यूनिट्स बता देते हैं ना कि 2 रिपीट यूनिट्स बनाए, 3 रिपीट यूनिट्स बनाए, फिर आप सिर्फ रिपीट यूनिट्स बनाते हैं, यू डोंट राइट एन, लेकिन एन जस्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोनोमर्स, राइट। लेकिन अगर आपको कहे कि वो सिर्फ ई पॉलीथीन बनाओ तो फिर ई पॉलीथीन बना के कनेक्टिविटी बॉन्ड्स डाल के आप एन डाल दोगे, हैं। कितने 80 में से अच्छे हैं मॉक में, 80 में से 80 अच्छे हैं प्रार्थना, मैंने ले लिए हैं तो आप भी ले सकते हैं सर। अगर आप अभी पेपर देते तो डिस्टिंक्शन आ जाता, बिल्कुल आ जाता सर। टिल व्हेन विल द रिकॉर्डिंग बी अपलोडेड? होपफुली बाय टुडे, होपफुली।